السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام عالم اسلام کو ایک مرتبہ پھر عید الاضحیٰ کی بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب. اور بہت پیاری ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسکالر, جو دینی اسکالر جن سے آپ ملتے ہیں میری پہچان میں اور ARY کے دیگر پروگرامز میں, ان کی باتیں سن رہے ہیں ہم. ہمارے ساتھ پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ تشریف رکھتی ہیں, سعدیہ سعید ہیں, حوریہ ہیں, اور تمام جو بچیاں آپ نعت خوانی کے تعلق سے جنہیں جانتے ہیں, سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں. وقفے پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے مائلہ آپ سے, اور میں یہ کہنا چاہ رہی تھی آپا آپ بھی اس بات میں شامل ہو سکتی ہیں کہ ہم لوگ جیسے مائلہ نے بتایا نا کہ ہم اس کو کس طرح سے رکھیں, اور ایک سال کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. آپ تقسیم کر دیں, ابھی تو ویسے ہی اتنا ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں. چلے اگر تقسیم بھی نہیں کر رہے ہیں تو اب اتنے عرصے کے لیے بھی نہ رکھنا, اپنے ساتھوں کا بھی تو کچھ خیال کرنا چاہیے. زینب, ہم جو ہیں قربانی جو ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. قربانی میں نمود و نمائش اور اب لوگوں کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر ہم کریں گے تو بالکل تمام ہماری جو نیک عمل ہے وہ رائے گا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے ایک سال کے لیے حوریہ فریج میں رکھ لیتے ہیں گوشت کے, ہم تو پورے مہینے کھائیں گے. یہ تمام چیزیں صحت کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہیں اور آپ کی نیکیوں میں بھی کمی کر دیں گے اگر آپ دوسروں کا حصہ روک کر اپنے لیے رکھ لیں گے. تو عید الاضحیٰ ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خوشیوں کو بھی اس میں شامل کریں. غریبوں, محتاجوں, مساکینوں, اور جو بہت لوگ جو پورے سال جن کو کچھ لوگ اتنے غریب ہیں کہ ان کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا, اور بکرے کا اگر کوئی بکرے کی قربانی کر رہا ہے تو بہت سے بیمار ایسے ہیں کہ جن کو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ بکرے کا گوشت استعمال کریں, تو ان بیچاروں کی اتنی استطاعت بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے لیے آدھا کلو یا 1 کلو اتنی مہنگائی کی گوشت خرید لیں. تو للہ کوئی نیکی کرتے وقت اپنے آس پاس لوگوں کو ضرور دیکھیں, اور ہمیشہ کوئی نیکی کرتے وقت انسان اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا دگنا ثواب. صحیح. اور آپ ہمیں تو عید الاضحیٰ پہ خاص طور پر یہ بات سامنے نظر آ جاتی ہے کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے, زیادہ تر ہم بھی ایسی کرتے ہیں, اور یہ آپ بھی اتفاق کریں گے اس بات پہ کہ جہاں پر قربانی نہیں ہوتی ان لوگوں کو زیادہ تر گوشت بھیجا جائے, اور ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے ظاہر اپنی گلی میں, محلے میں, جہاں آس پاس رہنے والوں میں معلوم ہو جاتا ہے کہ جہاں پر قربانی ہونا ہی چاہیے. بلکہ اکثر لوگوں کے ہاں 4-4 5-5 جانور آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہمارے بہت سارے علماء کرام نے اس بات کی بھی ترغیب دلائی ہے لوگوں کو کہ انہیں چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے گھر میں 5-6 جانور رکھیں, وہ ان رشتہ داروں کیا کہ جو جن کے گھروں میں قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے وہاں وہ جانور پہنچا دیں کہ ان کے بچے خوش ہو جائیں ہمارے گھر میں جانور آئے ہوئے, اور ان کو وہ موقع ملے, اور ان کے دل کی خوشی جو ہے وہ جو دل آپ خوش کر رہے ہیں یقیناً اس سے آپ کو بہت ثواب ملے گا, اور آپ کی قربانی تو اللہ تعالیٰ کے لکھی جا رہی ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ آپ نے ان کے گھر پہنچا دی تو وہ آپ کے حصے میں نہیں آئے گی, ثواب تو مل رہا ہے آپ کو. تو یہ ترغیب دلائی گئی ہے, اور میں بھی یہی کہوں گی کہ ہمیں واقعی میں ضرور کرنا چاہیے. اور اس عید پر نا بالخصوص سعدیہ آپ بھی اتفاق کریں گی اس بات پہ, کیونکہ بچے جو ہے نا خاص طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں جن گھروں کے باہر جانور بندھے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر جن کو یہ استطاعت نہیں ہے وہ ایک الگ سے نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کاش ہمارے گھر بھی بکرا آتا یا گائے آتی تو ہم اس کو ٹہلاتے. تو یہ حوریہ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کے اندر استطاعت ہے, آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے, اتنی توفیق دی ہے, تو اگر آپ 3-4 جانور کر رہے ہیں تو ایک کہیں پہنچا دیں. کیا کہیں گے اس تعلق سے؟ بالکل ایسے ہی ہے, اور بلکہ ہمیں کیونکہ دیکھیں صلہ رحمی کا حکم ہے نا کہ صلہ رحمی پر دگنا اجر ہے. ایک تو آپ کو صدقہ کرنے کا, دوسرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے پر بھی نا آپ کو اجر ملے گا. تو آپ کو پتہ ہے آپ اپنے خاندان والوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون استطاعت رکھتا ہے کون نہیں رکھتا. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کی اتنی استطاعت ہے, اور اگر جانور آپ کے پاس زیادہ ایک ہی ہے, لیکن آپ کوشش کریں کہ اپنے پر انہیں فوقیت دے دیں, تاکہ کیونکہ ہم سارا سال کھاتے ہیں, اور ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں سارا سال نصیب نہیں ہوتا, تو آپ ان تک حصہ ضرور پہنچا دیں. اگر آپ کے پاس اور جن کے پاس جانور ہیں وہ تو بدرجہ اولا بات اچھی ہے کہ وہ آپ اپنا جانور ان کو دے دیں, کیونکہ رب کی بارگاہ میں جانور کا زمین پر خون گرنے سے پہلے قربانی رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے. جب آپ صدق دل کے ساتھ, نیت اچھی کے ساتھ, رب کی رضا کے لیے جب آپ قربانی کرتے ہیں تو وہ قربانی وہاں چلی دیں گے. اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دے دیں گے, وہ تو قربانی آپ کی. اور اس وقت سب سے پیاری چیز انسان کے پاس دولت ہی ہے. ایسا ہی ہے, عزیز ہو جاتا ہے. اولاد تو ہے, اولاد اپنی جگہ ہے, لیکن جو اس وقت سب سے زیادہ ضروری چیز انسان کے لیے لگ رہی ہے, اتنی پریشانیاں, مہنگائی, تو پیسہ ہے نا. تو اگر آپ کسی اور کے لیے کریں گے
تو وہ صحیح، قربانی تو سب سے ثواب، زیادہ صحیح۔ پسند اور ہوگی۔ عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ افضلیت اگر کسی نیکی کی ہے تو وہ قربانی کرنے کی ہی نیکی ہے۔ سائرہ سے میں یہ ضرور پوچھنا چاہ رہی تھی، اور دونوں سے بلکہ میرا سوال ہے، ان بچوں کے لیے خاص طور پر کیا کہیں گی جو بچے رسی باندھ کے گھما رہے ہوتے ہیں، کھینچ رہے ہوتے ہیں، دوڑا رہے ہوتے ہیں جانوروں کو، کچھ کہیں گی ان کے لیے؟ پہلے آپ۔ میں تو اپنی بیٹی کا بتاؤں گی آپ کو کہ ماشاء اللہ میری بیٹی 2 سال کی ہے، تو وہ بکرے کو دیکھ کے جو صرف ایسے بولتی ہے بابا ماما بکا بکا بکا، اور وہ اتنا خوش ہوتی ہے بکرے کو دیکھ کے ماشاء اللہ کہ پوری گلی میں وہ رسی پکڑ کے گھما رہی ہوتی ہیں اپنے بابا کے ساتھ، بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں۔ ماشاء صحیح، اللہ۔ لیکن میرا سوال کچھ یوں تھا کہ جو بچے بھگا رہے ہوتے ہیں نا جانوروں کو غیر ضروری طور ان پر، کو کیا ان بتاؤ کو آپ نہیں بتاؤ۔ بھگانا چاہیے، جی۔ کیونکہ ان کو بتائیے، نہیں بھگانا مارو چاہیے۔ تکلیف نہیں دینا ہاں اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے اور زیادہ تر ان دنوں میں بہت دیکھنے کو آتا ہے، جانوروں کو بالکل تنگ کر دیا جاتا ہے، مطلب آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا فیل کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اگر آپ کو بھی کوئی اس طرح سے بھگائے، آپ کو بھی کوئی اسی تم طرح سے سے تم irritate سے کرے تو تو آپ کو واقعی بتایا برا تھا نا کہ لگے گا۔ باتیں کرتے ہیں، کسی بکرے نے کبھی شکایت کی کہ مجھے ایسے بھگایا؟ ابھی بتا رہی تھی نا کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ نہیں وہ مجھے اچھا، کسی نے وہ ایسے دیکھ شکایت کر ہی کی؟ بہت برا لگتا ہے، تو مجھے میرے سامنے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے ہاں۔ تو میں باقاعدہ طور پہ کھڑے ہو کے انہیں منع کرتی ہوں، ان فوراً بچوں کو ٹوکنا چاہیے ان ان بچوں کو مطلب تھوڑا اگر وہ نہیں مانتے تھوڑی سی اسٹرکٹلی بھی بولا صحیح، جاتا ہے صحیح۔ کہ آپ اس طرح سے نہ نہ کریں۔ کرو، اگر آپ کو بھی اس طرح سے کوئی کرے گا تو آپ کو درد تکلیف ہوگی، نہیں، اور وہ بچوں تو کو اس بیچارے وقت بے دیکھیں نا، زبان ہیں۔ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ کے گھر سے پہلے سے تربیت کی جائے ہاں۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کے ہاتھ میں رسی تھما دی، اب جو کرنا ہے کرو۔ کریں۔ بات یہ کہ آپ پہلے سے بچوں کو اس چیز کے بارے میں تربیت دیں کہ ہم اگر جانور گھر میں لا رہے ہیں تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، نہ کہ اس کو تنگ کرنا ہے، صحیح۔ کیونکہ اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ یہ سب چیزیں تو گھر کی تربیت میں شامل ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر ان چیزوں کی روک تھام ہو آپ سکتی ہے۔ کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ جناب آپ سب سے پوچھ رہی ہیں جی، کہ کس دن قربانی کرتے ہیں، کلیجی بناتے ہیں یا نہیں، ہاں۔ لیکن آپ اپنے بارے میں بھی تو بتائیے کہ آپ کس جانور کی قربانی کرتی ہیں اور بقرعید والے دن؟ اب ایسا ہے کہ ہم تو پہلے گائے ہی کی قربانی کرتے تھے، لیکن اب میرا بیٹا جب سے، میں نے سوریا سے اسی لیے کہا یہ کہ وہ جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، تو جب سے میرا بیٹا اتنا بڑے ہوئے ہیں، وہ صاحبزادے ہمارے حسان نام ہے ان کا، محمد حسان، تو وہ کہتے ہیں کہ بس وہ بکرا ہونا چاہیے، اور پھر وہ اس کے اندر خدمت کا بہت جذبہ ہے۔ اب وہ ماشاء اللہ سے ان کو کھلانا پلانا، وہ بڑی ایک ہمدردانہ جو رویہ ہوتا ہے نا حسان کا، شروع سے یہی ہے، اور وہ بہت زیادہ محبت کے ساتھ، کہ اتنا زیادہ مجھے ہو جاتا ہے کہ جب وہ قربانی ہو رہی ہوتی ہے نا، اوف جو وہ رو رہے ہوتے ہیں تو مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ، کہ ابھی کل بھی بلکہ نماز پڑھے تھے ہم دونوں، تو بلکہ آنسوؤں سے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا بیٹا؟ وہ مجھے پچھلے سال والا بکرا یاد آ گیا۔ وہ ایسے سین کر رہے ہوتے ہیں، وہ گھر پہ بہت ایموشنل ہے، وہ میں ایموشنل ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ زیادہ دن کے لیے آپ نہ اس کو یہ بھی بتایا کریں کہ یہی قربانی ہے اصل، جس کا ثواب ملے گا، آپ کی اٹیچمنٹ ہے نا اس کے ساتھ۔ سیوریا، اور دیکھیے عید الاضحیٰ کا دن بھی تو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور قربانی کا حکم دیتا ہے کہ ہم کس طرح کس کا دل رکھ سکتے ہیں، اور اللہ کی رضا، اللہ کے حکم کے آگے تمام رشتے ناتے، تمام دولت، تمام اثر و رسوخ سب بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو عید الاضحیٰ کے دن اپنے بچوں کو بٹھائیں، ان کی تربیت کریں کہ بیٹا کس طرح جانور لایا جاتا ہے، کس طرح باندھا جاتا ہے، کس طرح اس کی خدمت کی جاتی ہے، کس طرح گوشت بانٹا جاتا ہے۔ آپ جو اگر ہم دنیا میں نہ رہیں اور ہمارے بعد وہ بچے بڑے ہوں اور اپنی زندگیاں گزاریں، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ماں ان کے یہاں حصہ بھیجا کرتی تھی، وہ لوگ صاحب استطاعت لوگ نہیں ہیں، تو ہم ان کے یہاں بھیجیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ نہیں، آپ یہ پوچھ رہی تھی نا کہ کیا چیز مسنگ ہوتی ہے، کوئی چیز مسنگ ہوئی، تو میں کہوں گی میرے خیال میں یہی ایک چیز ہے جو کہ مسنگ ہوتی ہے ہمارے گھروں کی تمام تر قربانیاں، چاہے وہ عید الفطر ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، ان تمام تر چیزوں میں ہمارے یہاں مسنگ یہی ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہم تربیت نہیں کر رہے، ہم کسی کو بتا نہیں رہے کہ ہم یہ سب جو کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، اس میں پیچھے تاریخ کیا ہے۔ صرف ٹی وی پہ علماء کرام یا گھروں میں علماء کرام آ کر نہیں بتائیں گے، آپ بھی سب کچھ جانتے ہیں، آپ بھی بتائیں اپنے۔ اور بچوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے جب آپ اس قسم کے پروگرام دیکھیں گے، دینی پروگرام جو خاص طور پر کیو ٹی وی پر بڑے ماشاءاللہ اچھے تواتر کے ساتھ پروگرام آتے ہیں، اور ہر موقع پر جب بھی کوئی ایسا تہوار آتا ہے، کوئی بھی موقع آتا ہے، تو ہمارے علماء دین ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے سمجھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، تو ایک وقت نکالیں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں، دیکھیں۔ اور مفتی اکمل صاحب کا کتنا پیارا مسائل والا پروگرام ہے کہ وہ ہر بات اتنے پیار سے سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ چلو بھائی آپ بتائیے، بڑی دیر سے آپ مسکرا رہی ہیں، کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اگر ایسا کہ قربانی کے تعلق سے بچوں کے حساب سے، کیونکہ آپ ایج گروپ کی ہیں ایک ہی، تو ماہرخ سے اگر آپ پوچھیں
तो क्या पूछेंगी आप ईद के ताल्लुक से? मैं पूछूं? हाँ मैं पूछूं। सवाल तो अभी सवाल उनके जहन में नहीं आ रहा है, अचानक से आएगा जब हम ऑफ एयर होंगे तो सारे सवाल याद आ घर चले अभी जाएंगे, मैं बस घर वो जाके- गाय के बारे में ही सोचने लग गई थी। मेरे भाई भी, जैसे आपने, मेरे भाई का नाम भी हसन है, अच्छा। वो भी वही दीवाना गाय का बिल्कुल, कि बस घर में आने का होश ही नहीं है, ना हाँ। खाने पीने का होश है। जिस दिन गाय आई उस दिन किसी ने एक निवाला नहीं खाया, गाय में उसको सेट कर रहे हैं, ईंटें लगा रहे हैं, उसको चारा नहीं, जल्दी भाग के गए बाइक पे चारा वगैरह लाना, हर चीज़ ना, बैठे रहना बस उसके पास। अच्छा, घर में नहीं नॉर्मली आना। खवातीन क्योंकि मंडी में नहीं जाती, बहुत मखसूस खवातीन हैं जो इतना दिल गुर्दा रखती हैं कि वहाँ जाती हैं। कौन जाता है आप लोगों में से? कभी किसी का जाने मैं का गई थी। इत्तेफाक बस हुआ है? कैटल फार्म वगैरह में गए थे, कैटल जहाँ पे में, बड़ी हाँ। बड़ी गाय होती हैं, वहाँ देख के बस वापस आ गए थे। मेरा एक दफ़ा जाना हाँ। हुआ है, वो भी मामू लेकर गए थे, तो वो बस उनकी गाड़ी के अंदर बैठे बैठे गए और उसी में बैठे, क्योंकि मुझे गर्द और मिट्टी से जो है वो फौरन एलर्जी हो जाती है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं वहाँ निकल सकूँ। और सबसे बड़ी बात है कि कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि यही मामू थे जो कहते थे नहीं नहीं खवातीन वहाँ, बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे, बच्चियाँ नहीं जाएंगी, हाँ, क्योंकि मना वहाँ करते नहीं जाना है, रश होता है। तो जब वो लेकर गए तो बस गाड़ी के अंदर ही रहे, क्योंकि वो डर हमेशा से जो बैठा हुआ है कि नहीं जी बाहर नहीं निकलना है। और यार इससे रिलेटेड एक सवाल याद आ रहा है, एक क्वेश्चन मेरा है, लेकिन एक वक्फे पर जनाब हमें जाना है। हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर ईद की खुशियों में शरीक आपके साथ जनाब, आप देख रहे हैं ARYQ TV पर ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन, जो कि ARYQ TV ने आपके लिए खुसूसी तौर पर तरतीब दी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ईद उल अज़हा की, और ईद उल अज़हा के ताल्लुक से हमने तमाम ही जो मेहमान शख्सियात, ऐसी शख्सियात जिनको आप देखते हैं, और हम अक्सर जब प्रोग्राम्स में, दीगर प्रोग्राम्स में इनसे बात करते हैं, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई एक अलग मुनफरिद मौजू होता है जिसके ताल्लुक से ये बताते हैं। आज ईद उल अज़हा के ताल्लुक से जनाब बात हो रही है, और बात ये भी हो रही है कि इन्होंने किस जानवर की कुर्बानी की। हमने ये भी जाना कि ये ईद कैसे मनाती है। हुरिया एक दिन मंडी गई हैं, अहवाल जानते हैं, आइए। जी हुरिया, वो कौन सा दिन था? मैं एक्चुअली ये बहुत पूछना चाह पुरानी रही बात थी है, कि अभी की नहीं कितने अरसे पुरानी बात है ये ख्याल में 5-6 साल हो गए, 5-6 साल नहीं हो गए। बल्कि और ज़्यादा हो गए, इससे ज़्यादा, हाँ। ज़्यादा हो गए। हुसैन मेरे ख्याल में 1 साल का था, तो उसे मैं घर पे छोड़कर गई थी ज़बरदस्ती, हमें आयशा की वजह से जाना पड़ा था। तो आयशा ही बाहर निकली थी गाड़ी में से और मैं गाड़ी में बैठी रही थी। मैं नहीं, मतलब वो इसलिए भी है नहीं निकली कि लोग इसका- गायें छोड़ के हुरिया से ऑटोग्राफ लेते नहीं हैं, नहीं और नहीं obviously- मैं नहीं निकली, बता रही हूँ ना, कॉन्फिडेंस ही नहीं है इस तरह से निकलने का। हाँ, कभी गए नहीं थे, तो इस वजह से तो आयशा को बाहर ले गए थे, वो मास्क वगैरह लगा के, सही सही गंदगी और मिट्टी डस्ट होती है, बहुत तो डस्ट होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। सही। लेकिन इस तरह अब वो मैनेज करने लगे हैं कि वहाँ पे फिर खवातीन जा रही हैं। आराम बहुत से। खवातीन थी उस दिन भी, अच्छा। लेकिन ये कि एक हमारे का ट्रेंड नहीं है, तो जिसकी वजह से हिम्मत नहीं होती है। वैसे भी ज्यादातर जो जाहिर है हमारे घर के जो मर्द हजरात हैं, उनको हाँ। ज्यादा इस बात की मालूमात अब आप नहीं ये होती है, समझ हम लीजिए क्या कि वो देख सिर्फ एक पाएंगे खरीदने उसमें। की जगह नहीं रह गई, वो भी एक तफरीही मकाम हो गया। हाँ। वो भी लोग जो है खास तौर पर देखने जाते हैं, इस फार्म में सबसे ज्यादा महंगे जानवर हैं, इसमें सबसे बड़ा जानवर यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो हाँ, देखने के ये लिए भी लोग देखने जा रहे जाते होते हैं। हैं। असल सबसे में ये छोटे वजह भी है। कद का या हाँ। ज्यादातर तफरीह के लिए वॉक भी भी लोग तो जा रहे करवा होते हैं, रहे जिन्हें होते हैं सारे आई थिंक ना कैट वॉक भी सुना था कि एक दफा हुई थी हाँ। उनकी जानवरों सारे की। जानवर तो बहुत ज्यादा नमूद नुमाइश आपका ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहेंगी इस ताल्लुक से? बिल्कुल। अच्छा, अक्सर कुर्बानी का जानवर लाने की जिम्मेदारी 90% घरों में मर्दों की मर्दों होती की, है, या बिल्कुल। जब बेटे जवान हो जाते जी, हैं वो लेकर माशाल्लाह। आते हैं, और खवातीन जो अपने घर की जिम्मेदारियां वो पूरी करती हैं। फिर अक्सर अब कुछ घरों में ये भी देखा जाता है कि बच्चे बहुत जिद करते हैं कि अम्मी वहाँ मंडी लगी है, हम भी तो खवातीन बच्चों को भी गाड़ियों में बिठा लेती हैं, दूर से दिखाती है कि देखो वो जानवर कितना अच्छा लग रहा है, उस जानवर के इतने दाम है, मतलब शौक में। सही। और फिर आजकल तस्वीर बनाने का भी इतना हो गया कि लोग जानवरों की तस्वीर बना रहे हैं, अपने बच्चों को खड़ा करके बना रहे हैं, गोश्त काटते वक्त बना रहे हैं, ज़िबा करते वक्त बना रहे हैं। उसके तो बाद देखिए, बारबेक्यू जो की भी बना काम रहे हैं। हम अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए करते हैं, तो उसमें नमूद और नुमाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी आप मेरे करते ख्याल हैं में अल्लाह आपका की रजा कुछ एक की चीज ये भी है, हो सकता है उनके नियतों का भी तो हाल हाँ, अल्लाह हाँ, जानता है। हो बिल्कुल। सकता है ये भी चाहते हो कि हमारे पास एक यादगार रहे कि बच्चे यादगार ने यहाँ के तौर इसके साथ पे। खड़े होकर तस्वीर खिंचवा ली थी, ऐसा जानवर था। भी, हाँ, ये भी एक वो होता है ना। सही, लेकिन हाँ, ये जरूर जहन में रहे कि इसमें किसी को दिखाने वाली बात हो, फिर आप यादगार के तौर पे ही वो हमें फील हो जाता है ना, और या कि अगर किसी भी चीज़ को हम म्याना रवि से करेंगे, हद से तजावुज ना करें, तो हाँ। वो एक लिमिट होती है ना हर बिल्कुल। चीज़ की, वो हमें फील हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। मायला से मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि कोई अच्छी सी रेसिपी बताएं बारबेक्यू की, या ईद उल अज़हा पे जो भी आपकी जो घर की ख़ास डिश है जो आपके यहाँ बनती है। घर पे वो चपली कबाब होते हैं ना यार, जो कच्चे कीमे चपली कबाब होते हैं, कच्चे कीमे के कबाब कहते हैं कहलाते हैं। उर्फ हमने वो उसको मतलब फर्स्ट डे लाजमी बनता है।
कैसे बनते हैं? मम्मा बनाती है, कैसे बनाती है? देख उसकी रेसिपी मतलब आप कीमा लेते हैं, कीमा अच्छा, कीमा कीमा लेते हैं और उसको लेते हैं। सीधा कीमे के बनते हैं चपली कीमे कबाब। तवे पे उनको और उसके अंदर टमाटर डलते हैं और प्याज डलती है, और मतलब प्याज बिल्कुल ऐसे ही ड्राई करके कि उसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और तुम ना सारी रेसिपीज मिक्स कर रही हो, रहने दो। और ये बताइए मम्मा की वो वो घर में सबसे बड़ी है, हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको पकाने के वो लिए सोच रही थी, मौका देखिए नहीं दिया, एक सोच तरफ बन आप जाता। उससे आज आप बन जाए, बायोलॉजी के बनाना सवाल नहीं। पूछ रही हैं आज एक बन तरफ, जाता। दूसरी तरफ आप चाह रही हैं कि वो रेसिपी भी बताए, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी बच्चियां किसी भी शोबे में कहीं किसी से भी कम बनाना नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सब कुछ आता है। हाँ, बनाना आता है। बनाना आता है। बेवकूफ बनाना तो नहीं आता, बेवकूफ ना बनाए। बनाना आता है, बताना नहीं आता। उसने बताना नहीं आता। चलो तो मुझे लिख के मैसेज कर देना बाद में program हाँ के जी, बाद, इनको ठीक है? रेसिपी जो है ना पहुंचा दीजिएगा। हाँ, सही है, सही। मम्मा अच्छा से हुरिया, आप से भी मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि क्योंकि आप ज़ाहिर है माशाल्लाह जॉइंट फैमिली में रहती हैं और एक भरा हुआ कुंबा है, माशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपका दिन मसरूफियत का कौन सा बहुत ज़्यादा होता है दिन? हाँ, हमारे यहाँ ईद में तो फर्स्ट डे दावत होती है हमारे घर में माशाल्लाह पूरे ख़ानदान की, और हमारा बड़ा ही मसरूफ़ दिन गुजरता है वो कि सुबह से लेके रात तक, क्योंकि ज़ाहिर है आपके मेहमान भी आ रहे होते हैं सही। ईद मिलने के लिए, और उसके अलावा आपको रात में जो मेहमान नवाजी करनी है, दावत हाँ, करनी है, उसकी भी हाँ। तैयारी साथ साथ चलती है। तो एक दिन पहले से चांद रात से ही वो शुरू हो जाता है। सही। और ईद में भी, बकरीद में भी ऐसा होता है कि कभी पहले दिन होता है, वो भी है, फिर उसके ऊपर होता है कि किसके घर में कहाँ कहाँ जब ख़त्म हो जाए सब हाँ, कुर्बानी वगैरह, तो उसके बाद फिर हम करते हैं। तो वो पहले दूसरे दिन तो अम्मी के यहाँ जाना होता है, सही। लेकिन तीसरे दिन या पहले दिन का जो है वो हिसाब किताब होता है कि इनमें से कोई दिन होगा जिसमें दावत होनी है हमारे घर। सही। और वो कुर्बानी जो तो पहले दिन हो आप जाती है हमारे यहाँ। एक तो हम जब गोश्त के हिस्से करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हाँ, याद रहता है या बाकायदा लिखती हूँ? क्योंकि मेरे घर पे जैसे पूरी लिस्ट बनी लिस्ट हुई होती है, बनती है, क्योंकि हाँ। भूल जाते हैं कभी, फिर भूल बाद जाते में याद आता है नहीं अरे नहीं, हम ये वो तो बॉक्सेस है। बना लेते हैं हाँ। पहले, बॉक्सेस हम एक पहले ही से हिसाब बना से बना लेते लेते हैं। हैं, अच्छा। और उसके बाद फिर जो है वो सही, सबके सही। हिसाब से कि सादिया, किसको मैं कितने चाहिए वो अपने ले जाए। ठीक ठीक। सादिया से ये पूछूंगी और इसका जवाब सादिया ने ज़रूर देना है, ये नहीं कहना कि मैं ये काम नहीं करती हूँ। कौन से ऐसे काम हैं जो ईद की चांद रात के लिए आपने रखे होते हैं कि बस ये तो चांद रात ही को करना है मुझे? है कोई? अपना नहीं बताया, अम्मी बता दें। अम्मी करती होंगी, कौन घर की तज़ीनो आराइश है, क्या है? सफाइयाँ करती हूँ। हाँ, जैसे हमारे यहाँ ईद हाँ, वाले- याद आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं सफाई करने की बहुत शौकीन हूँ। आप हाँ, मुझसे मैंने घर क्या चमकवा लें, हाँ, ये काम मैं बहुत अच्छा करती हूँ। सही। चलें बताएं। तो रात में हम जैसे बेडशीट चेंज कर देते हैं, और हमारे यहाँ एक वो फर्शी नशिस्त है, सही, सही। उसके पूरी मतलब चादरें चेंज होना, गाँव तकिया सेट होना, एक जो हमारा लाउंज का सोफा सेट है उसके कवर दूसरे चढ़ना, और ड्राइंग रूम वाले सोफे के दूसरे कवर वो करना, मतलब एक ऊपर डेकोरेशन से पूरी आपके हाथ में। सही। पूरी नहीं, वो वो पूरा काम फिर करके- चांद रात को ही होता है ना, ये और वाला जो तो, हाँ, किचन में जो भी बेडशीट वगैरह काम से। फैला हुआ वो सब भी पूरा किचन चमकाना, बस वो एक उस टाइम एक बात हुई, तो वाकई में मैं कोई इतना कुछ भी नहीं पकाती हूँ, सही। रोटियां जरूर पकाती हूँ, वो भी गोल, लेकिन वो भी गोल। लेकिन ना दूसरी तो बात ये कि वैसे मेरी अच्छी बात है। पढ़ाई भी कुछ ऐसी थी कि लगातार मतलब आलमा के कोर्स में मुझे इतना टाइम नहीं मिल सका कि मैं प्रॉपर कोई कुकिंग का कुछ सीखती, सही, तो सही। इसलिए भी थोड़ा सा गैप रहा, लेकिन फुअर भी नहीं कहेंगे मुझे, मैं अगर कोई नहीं, नहीं, भूखा हम हो तो आपको भूखा नहीं रहने देती, खाना खिला हम देती। आपको बिल्कुल फुअर नहीं कह रहे। और जो ये काम आप कर रही हैं ना, जो आप तदरीस का, और ख़ास तौर पर यहाँ पर QTV के पैनल से आप आती हैं, बताती हैं, बहुत बड़ा सदका जारिया है। और जज़ाकल्लाह, यकीनी बहुत तौर शुक्रिया। पर- लेकिन वैसे एक हाँ, हाँ, मजाक के उस पे सही। मैंने ये बात कही, लेकिन ये जो आपने लेकिन- घर के काम बताए ना सादिया, ये वो बच्चियां हैं शायद, ये आप तो माशाल्लाह सायरा तो पूरी जिम्मेदारी इन्होंने उठाई हुई है घर की, लेकिन ये वाले काम जो होते हैं ना, जो सफाई के, जो छोटे मोटे काम घर के होते हैं, वो सारा दिन चल रहे होते हैं, और बेचारी बच्चियों को ये सुनने को मिलता है करने के बाद भी, तुमने किया क्या है सारा दिन? ये आपको सुनने को और मिलता है उसमें फिर कभी साथ कभी। में मेहंदी हाँ, भी लगवानी होती है ना, आखिर में चूड़ियाँ खरीदनी भी जानी होती नहीं, है, तो वो चूड़ियाँ सब का चीज़ें भी चूड़ियों का जरूरी शौक होती नहीं है। है मुझे, मेहंदी का बहुत है। चूड़ियों का शौक मेहंदी लाजमी लगनी है मेरे हाथ चूड़ियों में। का शौक नहीं है, वो नजर आ रहा है। लेकिन मेहंदी का शौक है, वो भी नजर आ रहा है। मेहंदी का मुझे बहुत शौक वो भी है। नजर आ चूड़ियों से रहा है। मुझे एक उलझन भी होती है, गर्मी भी लगती है है। बहुत, लेकिन रिंग्स पहन लेती हूँ, और बस मेहंदी लगी हो, कुछ भी ना हो मेरे पास, मेहंदी लगी हो। ठीक है। हाँ बेटा, आप बताएं, जो मैं अभी आपसे पूछ रही थी ना कि बच्चियाँ ज़्यादातर जो छोटे मोटे काम करके हर वक्त दस्तरखान लगाना है, टेबल साफ़ करनी है, डाइनिंग लगानी है, ये सारे काम बच्चियों के होते हैं। हाँ, ऐसे ही है रूटीन,
मतलब अगर मुझे कॉलेज जाना होता है तब भी, और अगर कॉलेज नहीं जाना होता है तब भी मम्मा जो है अर्ली मॉर्निंग उठा देती है। मम्मा ज़्यादा देर अरे, सोने नहीं देती, नहीं अच्छी बात है। अच्छी बात है। एक तरह से कभी कभी मुझे बुरा लगता है, बट कभी कभी ऐसा लगता है, फील होता है कि नहीं, क्योंकि मुझे खुद ही ऐसा रियलाइज़ होता है कि हम सुबह जितनी सुबह हम उठ जाते हैं ना, उतनी जल्दी जल्दी मेरे सारे काम हो जाते हैं और मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ, मतलब सफाई वगैरह करने से। सही। तो फिर बाद में पहले मम्मा ये कहते हैं कि क्या करती हो तुम वो वैसे ही कह देती है मम्मा तंज में, वो बोलना कंपलसरी है, वो शायद मेरा नहीं, वो सबका सारी है। माओं का है। हाँ, वो ये मम्मा जुमला कह तो देती सारी तुमने माओं का किया है। ही किया है। फिर मैं बोलती अच्छा मम्मा, तो मैं कहती अच्छा ठीक है मम्मा से पूछेंगे अभी। हाँ और फिर सही। जी आप बताएं, आप क्योंकि आपने बताया कि मैं कुकिंग भी करती हूँ, काम की जिम्मेदारी भी है माशाल्लाह आपकी, तो कोई ऐसी रेसिपी जो आपके हाथ की बहुत ज़्यादा ससुराल में भी घर में भी बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्या पसंद किया जाता है सबसे ज़्यादा? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेरे हाथ का स्टू, कटे मसाले का जो स्टू होता है ना, स्टू? वो स्टू, अच्छा वो माशाल्लाह सबको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। अच्छा। हमारे यहाँ एक रेसिपी ये है कि बॉइल्ड गोश्त जो है ना वो पहले से करके रख दिया जाता है, वो हमारे यहाँ माशाल्लाह सब बहुत शौक से खाते हैं। किसी भी कुछ भी खाना बनता है उसके साथ सब माशाल्लाह शौक से उसको फ्राई करके, एक तो बॉईल करके उसको अलग से रख दिया, उसके हाँ। बाद जब खाना होता है तो उसको गरम करके और तेल में फ्राई करके फिर उसके बाद खाया जाता है वो। सही। और कटे मसाले के स्टू की बात बताऊँ तो माशाल्लाह वो सबको बहुत पसंद आती है माशाल्लाह से। सही सही। आप कुकिंग करती हैं घर में? टाइम मिल जाता है? नहीं ना, क्योंकि आप इतनी आपा ने मसरूफ हमेशा रहती कहा कि हैं। मैं नहीं। हाँ, क्योंकि आप इतनी मसरूफ रहती हैं और मैं आप शाम इतनी में busy वो life है। एक वो आपने वाक्य बताया तो इनको भी बता दें, नहीं, वो क्या हुआ था वो? बताएं। वो ईद के मौके पे हाँ, बताऊंगी। इसके मौके पर। कौन सा वाक्या, मुझे भी पता चलना शादी चाहिए। के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप जो है वो अंडा बनाइए, तो नमक के बजाय जो था मैंने उसमें सोडा डाल दिया है। वो तो इतना बड़ा हो गया तो मैं तो डर गई कि कोई बच्चा खाने में कोई असर वसर तो नहीं है, लेकिन कुकिंग के लिए टाइम नहीं मिलता। लेकिन इसके अलावा सही। ज़ैनब मेरी और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं हाँ। जिनको मैं बहुत खुशूसलूबी से अंजाम देती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब कोई वक्त पड़ता है तो मैं किचन में जाने वालों में सबसे पहले होती हूँ और कुकिंग करती हूँ। मुझे सही। कुकिंग आती है लेकिन मेरे पास टाइम टाइम नहीं नहीं होता। होता। सही। तो आज जो आप फरमा रही है ना आपा कि मुझे कुकिंग आती है, बिरयानी एक ऐसी डिश है जो हर घर में पकती है और बनती है और सबको अच्छी लगती है। बहुत कम लोग हैं ऐसे, मेरे ख्याल से अभी भी आप लोग से भी पूछा जाए तो सब बिरयानी के शौकीन होंगे, है ना? पानी आ गया मुंह में। सबसे ज़्यादा मैं शौकीन हूँ बिरयानी की। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिरयानी शान का कैसे बिरयानी बनती है? पैकेट जिंदाबाद। हाँ, लेकिन ये बात भी सही है, लेकिन आजकल एक सब बात लोग है पैकेट, लेकिन पैकेट जो से, बहुत हाँ। सलीकेमंद लोग होते हैं वो पैकेट का खाना हमारे कभी भी यहाँ- नहीं मेरे खाते, ससुराल में वो यूज़ अपने नहीं हाथ से तमाम चीजें डालते मेरी हैं। अम्मी लेकिन हम जैसे लोग जिनके पास टाइम की कमी होती है तो शान का लेकिन कौरमा वो उससे मसाला, एक शान बात है का आपा, पैकेट से मैं भी नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती पैकेट को खास तौर पर, लेकिन बहुत सारे लोग जो पैकेट से बना रहे हैं, जिनको बनाना आता है ना वो ही बना सकते हैं उससे भी, वरना वो उसको भी खराब कर देते हैं। सही सही। अच्छा, मैं तो आजकल एक बात पे बड़ी खुश हूँ कि मुझे हलीम बनाना आ गया, क्योंकि मुझे हलीम ना बहुत पसंद था और मैं चाहती थी कि बस कुछ हो घर में ना हो, बस हलीम बनना चाहिए। तो एक मरतबा हम, मेरी एक दोस्त है, उन्होंने मुझे बड़ी आसानी से बड़ी ज़बरदस्त बहुत अच्छी सी रेसिपी बताई और मैं बड़े मज़े से अब हलीम, अब मुझे इतना फ़ख्र है इस बात पे कि मुझे हर एक को बताती हूँ क्योंकि मुझे फील होता था जैसे ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। बस आप ये बताइए कि आप हमें बुला कब रही हैं, कब खिला रही हैं? आप मोस्ट वेलकम। हम तो आपको बता चुके हैं, बोल भी चुके हैं, आप तशरीफ लाइए। हमारी पड़ोसी भी रह चुकी हैं आप, तो माशाल्लाह हाँ, बहुत बहुत अच्छा वहाँ साथ साथ ही रहते थे और सफ़र भी माशाल्लाह महफिल में भी काफ़ी वक्त गुजरता है आपा के साथ और बहुत अच्छा एक ताल्लुक़ था है हमारा आपा के साथ बताने का, जैसे मैंने इब्तिदा में भी बताया था। अच्छा मारूक, आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब बच्चे, जिस तरह से अभी हमने बात की ना कि बच्चे घूम रहे होते हैं, लेके जा रहे होते हैं जानवर को, तो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपसे छोटी बहन भाई हैं? मेरे 2 छोटे भाई हैं, बिलाल और हसन, जो मतलब वो छोटे ऐसे नहीं है, वो फर्स्ट ईयर में और एक मैट्रिक में, तो वो तो भाई अपनी गाय को, कोई हमारी गाय को हाथ नहीं लगाएगा, अगर इसकी रस्सी भगाई ना तो अच्छी बात नहीं होगी, गुनाह मिलता है। हमारे भाई खुद ऐसे नहीं, भाई हम अपनी गाय को दूर नहीं लेके जाएंगे ज़्यादा, इसके लग ना जाए, ये ना हो जाए, मतलब एक वो होता है, और लाके बांध दो, मतलब बहुत ख्याल, केयर, प्यार मोहब्बत से रखना गाय को।
मैं कहा, कभी सही, हमारा भी इतना ख्याल कर सही। लिया करो। माया, मैं आपसे एक स्टूडेंट की हैसियत से, क्योंकि आप साइकोलॉजी कह रही हूँ, साइंस की स्टूडेंट हैं, और जो आप बात बताएंगी वो ज़ाहिर हो सकता है कि वो दूसरों से अलग हो, थोड़ी सी हटकर हो। अब ईद उल अज़हा पे जैसे बहुत ज़्यादा ज़ाहिर आलाइशें होती हैं, उनको किस तरह से हम घर से बाहर इस तरह से करें कि वो नुकसान देना हो, घर में ही रख के उनको इस तरह क्या उसको एहतियात करें, किस तरह से डालें बाहर कि वो बहुत ज़्यादा उनकी ज़ाहिर एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर जाती है अगर बहुत ज़्यादा सफाई ना की जाए, बताएं। बिल्कुल ऐसा होता है जब कुर्बानी होती है तो उस टाइम पर मतलब जो आलाइशें सारी होती हैं, हाँ। तो कुछ लोग ऐसा होता है मतलब अवेयरनेस नहीं है या फिर उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि जहाँ गोश्त कट रहा है वहीं पर वो रखी है। तो इस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं, लेकिन इसका हमारी लाइफ पर, हमारी हेल्थ पर बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सही। सारे जर्म्स जो होते हैं ना वो उस गोश्त पे लग जाते सही। हैं, और फिर आप उसको कितना भी फ्रीज कर लें, स्टोर कर लें, तो वो आपके लिए हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। आपको नहीं पता उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो आपके अंदर बहुत सारी डिजीज कॉज कर रहे होते हैं। सही। इस तरह नहीं, तो अभी उसको तो आप उन प्रिंस- आईलैशों की बात कर रहे थे ना कि जैसे जो हम ऐसे फेंकें किसी चीज़ में डाल के, कहीं शॉपर में डाल के, हाँ, इस तरीके शॉपर से में उसको डालें। आप डाल के और ऐसे करें कि जैसे हम कहते हैं ना कि मिट्टी में उसको दफना दें, हाँ, तो इस ये तरीके से बड़ी आप अच्छी उसको बात कही कवर कर आपने। सकते हैं, क्योंकि सही। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। सही, ये बड़ी इसलिए। अच्छी बात कही आपने। हुरिया, ब्रेक पे जाना है। हुरिया माशाल्लाह बहुत अच्छी होस्ट हैं, वक्फे पे जाना है जी। क्या करना है, वक्फे पे जाना है? जी अच्छा जी, तो इंशाल्लाह ताला नाजरीन बहुत सारी मीठी मीठी आवाज़ के साथ बातें सुनने के लिए हम वापस आएंगे थोड़ी सी देर में, लेकिन अभी आप फ़िलहाल अपने घर में अगर कोई कीमा खा रहे हैं या कबाब खा रहे हैं तो खाइए, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे।